Hello everyone. In this lecture, I am going to introduce you to the concept of computer aided audit techniques, or in short we call them CAT, C-A-A-T. So what are these computer aided audit techniques? I'll be discussing this from your book. Title is Computer Application in Business for Become Honors by Dr. Hemchand Jain and H.N. Tiwari. So what are computer aided audit techniques? First of all, let's briefly recapitulate what is audit. You all must be familiar with the term audit. What does an auditor do? He examines the accounting statements of a particular business and expresses his opinion whether the statements, the accounts, records presents a true and fair view of the state of affairs of the business or not. So in this process, he examines the documents and verifies and just checks about whether there are any errors or there is any discrepancy, कोई hidden information, misrepresentation of facts, some window dressing, इस तरह की कोई कुछ छुपा तो नहीं रही है कंपनी. ठीक है, क्या जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स हैं क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रही हैं बिजनेस का या नहीं. सो फॉर दैट द ऑडिटर डील्स विद ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ डेटा एंड उनको वेरिफिकेशन करना, सारा डॉक्यूमेंटेशन को चेक करना. कंप्लीट चेकिंग इज नॉट पॉसिबल गिवन द टाइम एन ऑडिटर गेट्स. सो ही कलेक्ट्स अ सैम्पल और उस सैम्पल को एग्जामिन कर उसके बेसिस पे वो अपनी रिपोर्ट बनाता है एंड ही गिव्स हिज ओपिनियन. सो दिस प्रोसेस अगर हम मैनुअली देखें जो कि ट्रेडिशनली करता था तो इट वॉज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड प्रोन टू एरर्स, क्योंकि इतने सारे अकाउंट्स को, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स को, वाउचर्स को एग्जामिन करना वॉज नॉट अ सिंपल टास्क एंड ही मे मिस आउट सम सर्टेन इम्पॉर्टेंट discrepancies which may remain unnoticed. So ये अकाउंट जो ऑडिटिंग प्रोसेस है अगर मैनुअली किया जाता है so it's a very time consuming and prone to errors. It involves high sampling risk and multiple view of data is not possible if we do it manually. So this computer aided audit techniques, this is a practice to use the computers to automate the audit process. In this audit process, पूरा जो verification का process है इसमें if we make use of computer techniques, computer aided audit techniques, then the work of the auditor can be simplified, can be automated, can be more effective and rational. So what is CAT? It refers to the techniques and the computer programs that are designed and developed to audit the electronic data or to audit the data which cannot be audited manually. आजकल सारा डेटा ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिकली, बहुत सारा डेटा इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल है. ठीक है, यू रिकॉर्ड द ऑर्डर आईडी, कस्टमर ट्रांजैक्शन आईडीज और पूरे डिटेल्स कस्टमर के कौन से चेक से पेमेंट किया या लिया. सो सारा इलेक्ट्रॉनिक डेटा जो भी है दैट इज इट इज पॉसिबल टू ऑडिट दैट यूजिंग कंप्यूटर aided techniques, and this will make the why to use this, because this will make the audit more rational. It will improve the audit quality and also the effectiveness of the auditor. जल्दी और सही तरीके से काम होगा. ठीक है, it makes available an audit trail, क्या क्या काम कैसे कैसे किया. It will make an audit trail, allow splitting of data, it will enable combining data from different files and to view it in different forms, aggregate करके, split करके. So this is all possible with the help of computer tools. It may remove the probability of sampling errors. So by generating random numbers आप ज़्यादा अच्छे से samples collect कर सकते हैं और sampling errors remove कर सकते हैं. Right. Then it provides the capability to conduct statistical analysis and identify the extreme values and enable generation of instant reports. So this is why we use CAT tools. Now if we see, there are a wide range of softwares that can be used as CAT tools. So there are specialized software meant for auditing purpose.
Some of them are interactive data extraction and analysis, IDEA, and audit command language. These are few examples of specialized audit software. However, in this lecture and in your syllabus also, we will be just restricting ourselves to the use of the common application softwares that we have learned in our which is there in our syllabus, like MS Excel and MS Access, which we have learned. We'll see how we can use MS Excel and MS Access for the purpose of auditing. Right? So, we will briefly discuss some applications of Excel and Access. Basically, the Excel applications in the auditing process. So, computer application in auditing basically. So, for example, we can use Excel to identify duplicates or gaps. An auditor may require to find out whether there is any gaps. For example, there are ऑर्डर एंट्रीज है, पूरी एंट्रीज हैं जिसके अंदर चेक नंबर मेंशन्ड है, सारी ट्रांजैक्शंस के अंदर चेक नंबर्स मेंशन्ड है एक पर्टिकुलर बिजनेस के. सो द ऑडिटर मे लाइक टू आइडेंटिफाई वेदर एनी चेक नंबर इज मिसिंग और नॉट फ्रॉम दोज वाउचर्स, whether there is any check number missing or not. If electronic records are available for all the transactions which mention the check number as well, it is very easy to identify the missing check number by simple use of Excel formulas. How? So here also it says it is possible to observe a few missing numbers of check. How we can do that? Identify the gap. First of all, we'll sort the data serially in the order of the check number, say in ascending order. Now let's look at an example. ये है illustrations जहाँ पे वाउचर नंबर हैं आपके, डेट, अकाउंट, डेबिटेड, अमाउंट एंड द चेक नंबर. सो इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अगर अवेलेबल है, चेक नंबर्स के भी हैं इसके अंदर, तो हम चेक नंबर के अकॉर्डिंग हम सॉर्ट कर लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इसको. नाउ यहाँ से भी ऐसे चेक करने से ज़्यादा बेटर है दैट राइट नाउ इट इज़ नॉट सॉर्टेड, ये इसको सॉर्ट कर लेगा. सो चेक नंबर को फर्स्ट ऑफ ऑल सॉर्ट कर लेगा एंड देन वी कैन अप्लाई अ सिंपल फॉर्मूला. हेयर ऑल्सो अगर हम मैनुअली देखें 1 2 3 4 5th इज मिसिंग, बट इफ देर आर हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन, देन इंस्टेड ऑफ आइडेंटिफाइंग इट manually after sorting also, we can still simplify our process by applying a simple formula. if का formula अगर हम लगाएं एक्सेल के अंदर, एंड किस तरह से हम माइनस कर रहे हैं, हम डिफरेंस फाइंड आउट करें सेकेंड रो चेक नंबर का फ्रॉम द फर्स्ट, और उसको ड्रैग कर दें, राइट. एंड वी से इफ द डिफरेंस इज मोर देन 1, देन राइट yes. yes here means yes it is missing, या मिसिंग कर दीजिए आप उसको, ठीक है. सो इफ का फंक्शन हम लगा के क्राइटेरिया लगाते हैं दैट E3 माइनस E2, ये क्राइटेरिया चेक करेगा. इफ इट इज मोर देन 1 देन टाइप अ yes, एल्स ब्लैंक, एंड इसको हम ड्रैग कर देंगे तो हर रो में जहां पर भी ये डिफरेंस मोर देन 1 होगा वहां पे वो yes रिटर्न करेगा, अदरवाइज ब्लैंक. सो हेयर वी कैन सी 6 माइनस 4 वॉज मोर देन 1, तो उसने yes रिटर्न किया. फिर यहाँ पे अगेन 12 माइनस 10 वॉज मोर देन 1. सो इस तरह से आप अब बहुत क्लियरली ये पिक्चर देख पाएंगे. इट विल हार्डली टेक 2 मिनट्स. ऑडिटर का टाइम इतना सा लगा एंड उसने इजीली आइडेंटिफाई कर लिया कि वेदर देयर एनी मिसिंग चेक नंबर. देन ही कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन दोज चेक्स, और उसको वो ट्रैक कर सकते हैं कि वाई इट इज मिसिंग. जेन्युइनली हो सकता है कि मिस हो गया हो, अदरवाइज अगर कुछ प्रॉब्लम भी है तो वो आइडेंटिफाई कर सकता है इनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके, एंड इट कैन आस्क फॉर एक्सप्लेनेशंस व्हाई दीज आर मिसिंग. इट मे हेल्प हिम identify some fraud, etc., etc. Right? So a simple thing, how to identify missing check number, it's an example. Similarly, let's now move on to identifying duplicate entries. Suppose a business, in order to window dress its account, in order to show profits, higher profits, वो अपने जो revenues हैं, जो collections हैं, उनकी एक बार रिसीव हुआ बट उसको 2 या 3 टाइम्स शो कर रहा है अपने अकाउंट्स में, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेवेन्यू, इन ऑर्डर टू विंडो ड्रेस.
तो इस फ्रॉड को आइडेंटिफाई करने के लिए, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई डुप्लीकेट एंट्रीज, कभी कभी गलती से भी हो सकती हैं, कभी जानबूझ के भी हो सकती हैं। सो उन डुप्लीकेट एंट्रीज को आइडेंटिफाई करने के लिए सपोज देखिए ये रिकॉर्ड्स हैं उनके, जहां पे अमाउंट डेबिटेड एंड अमाउंट, द अकाउंट डेबिटेड एंड द अमाउंट, वही सेम एग्जाम्पल है हमारा कि कौन से अकाउंट में से कितना अमाउंट, ठीक है। तो अकाउंट, जिसका अकाउंट है उसका अकाउंट का नाम है एंड देन द अमाउंट बाय विच इट इज डेबिटेड। सो ऐसा तो नहीं है कि सुनीता और 3500 की एंट्री कहीं पे रिपीट हो रही हो सेम, वो डिफरेंट अमाउंट से दोबारा से ट्रांजैक्शन सेम पार्टी के साथ हो सकती है, बट अगर सेम ही पार्टी के साथ सेम ही अमाउंट की 2 या 3 ट्रांजैक्शन हैं, दो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ऐसा भी हो सकता है, बट इट मे अराउज सम डाउट एंड इट मे नीड सम फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो ऑडिटर का काम यही है कि अगर कोई भी थोड़ी भी डाउटफुल एंट्रीज हैं तो उनको इन्वेस्टिगेट कर और उनकी ट्रूथ फाइंड आउट करें। सो यहाँ पर अब हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सेम नेम और अमाउंट कहीं रिपीट तो नहीं हो रहा। नेम रिपीट हो सकता है, अमाउंट भी रिपीट हो सकता है, पर उनका कॉम्बिनेशन अगर रिपीट हो रहा है, दैट शुड ऑन दोज एंट्रीज वी शुड पे अटेंशन। सो इसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला यूज किया है, देखिए, इन ऑर्डर टू कंबाइन बोथ द सेल्स, अकाउंट डेबिटेड एंड द अमाउंट। सो C2 में सपोज अकाउंट नेम है एंड डी रो के अंदर, डी कॉलम के अंदर हमारे अमाउंट्स हैं, तो हम किस तरह से कंबाइन कर देते हैं, एक फॉर्मूला लगाते हैं, एंड फंक्शन का यूज करते हैं यहाँ पर, ये सिंबल का C2 एंड देन वी नीड अ स्पेस एंड देन एंड D2। हमने कंबाइन कर दिया पार्टी का नेम, फिर एक स्पेस और फिर अमाउंट, राइट। और हमने ये फॉर्मूला लगा दिया एक G कॉलम में, राइट। सो G में नहीं, हमने F में लगाया कंबाइंड का फॉर्मूला, और जैसे ही हमने ये फॉर्मूला लगाया, दिस सेल एंड सिंबल स्पेस एंड दिस, सो इन दोनों को कंबाइन करके वो इस तरह से शो करेगा, सुनीता स्पेस 3500, बिल्डिंग अकाउंट स्पेस 2,50,000। इस तरह से हमारे पास ये कंबाइंड आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कहीं पे रिपीट हो रहा है कि नहीं। उसके लिए हम काउंट फंक्शन यूज कर सकते हैं कि कहीं पर भी सुनीता 3500, अगर पूरे ये अकाउंट जो भी एंट्रीज हैं हमारी 100 या 1000 एंट्रीज हैं, उनके अंदर कितनी बार ये रिपीट हो रही है। सो हम फंक्शन लगाएंगे काउंटिफ, राइट। काउंटिफ में रेंज एंड क्राइटेरिया। सो रेंज में हम पूरी जो भी 100 एंट्रीज हैं उनको रेंज ले लेंगे, काउंट इट इक्वल टू काउंटिफ द होल रेंज, एंड फर्स्ट रो में इसके सामने हम क्या लगाएंगे कि काउंट इफ दिस होल रेंज एंड क्राइटेरिया इज इफ इट इज इक्वल टू दिस सुनीता 3500। तो यहाँ पे सुनीता के सामने आपका G3 में आ जाएगा कि सुनीता 3500 जो है ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, उसका नंबर। इफ इट इज 1 देन इट्स फाइन, अगर वो 1 से ज्यादा है देन आप उसको फर्दर एग्जामिन कर सकते हैं। सिमिलरली उसको हम ड्रैग कर देंगे, रेंज को फिक्स कर देंगे और इसको वेरिएबल रखेंगे कि कौन से सेल के बराबर होना चाहिए, क्राइटेरिया को वेरिएबल रखेंगे। तो बिल्डिंग अकाउंट 2,50,000, ये एंट्री को वो सारे में देखेगा, जितनी बार ये काउंट हो रही है वो यहाँ पर लिखेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 111 आएगा जो नॉन रिपीटिंग है, बट जो भी रिपीट हो रही है 2 या मे बी मोर देन 2 भी अगर आपने रिपीट की है, सो इट विल अराउज डाउट एंड वो इन एंट्रीज को फिर फर्दर वेरीफाई कर सकता है। बिकॉज फॉर एन ऑडिटर इट इज नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल टू वेरीफाई ईच एंड एवरी एंट्री। उसको सिलेक्टिव एंट्रीज को वेरीफाई करना होता है और इस तरह से वो अपनी अटेंशन को कॉन्सेंट्रेट कर सकता है इस तरह की एंट्रीज पे, राइट। सो वी हैव सीन हाउ ही कैन आइडेंटिफाई गैप्स, हाउ ही कैन आइडेंटिफाई मिसिंग चेक नंबर्स और सम अदर मिसिंग इंफॉर्मेशन। थर्ड थिंग, यू कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई एक्सट्रीम वैल्यूज और आउटलायर्स। जनरली एक ट्रांजैक्शन होती है हमारी एक मनी रेंज के अंदर कि लैक्स ऑफ रुपीज या 10 लाख से ज्यादा कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती है, बट अगर कोई एक्सट्रीम 1 करोड़ की या 50 लाख की कोई ट्रांजैक्शन है, कोई एक्सट्रीम वैल्यू है, देन इट शुड अराउज अटेंशन, इट शुड
इट शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड अपॉन, उसको वेरीफाई करना जरूरी है, जो एक्सट्रीम वैल्यूज वाली ट्रांजैक्शंस हैं. सो इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एक्सट्रीम वैल्यू आप सॉर्ट कर सकते हैं जो भी वैल्यू है. अगर आपको अमाउंट के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन वैल्यू के अकॉर्डिंग देखना है, सो you can sort it and then you can identify, or you can apply the minimum maximum function or some other criteria की quartile 3 के again. so इस तरह से आपने suppose amount के according sorting कर लिया, and then you can identify कि क्या इनमें से कोई outliers है, किस range में रहता है. अगर यहाँ पे कोई lakhs की जगह पे crores में figure आ जाती, generally आपका एक range में रहता है, but एक outlier है, देन या फिर इसके अंदर भी जो मैक्सिमम वाली है एक्सट्रीम वैल्यू जो है, यू कैन चेक दैट, यू कैन बिल्ड एन ऑडिट ट्रेल फॉर दैट, यू कैन वेरीफाई दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन. सो एन ऑडिटर कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन एक्सेप्शनल transactions rather than analyzing all of them. He can concentrate his attention on the exceptional or the extreme value, whether it is too low or too high, right? Outliers basically. So now next another important, हमने कहा कि ऑडिटर जो है सारी इंफॉर्मेशन को नहीं एनालाइज कर सकता, वो रैंडमली सिलेक्ट करता है कुछ ट्रांजैक्शंस. थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं या हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं, उनमें से वो कुछ ट्रांजैक्शंस का एक रैंडम सैंपल कलेक्ट करता है और फिर उनको एनालाइज कर सकता है. उसके बेसिस पे ही गिव्स हिज जनरलाइज्ड ओपिनियन अबाउट द अदर ट्रांजैक्शंस एज वेल. सो स्ट्रैटिफिकेशन, रैंडम सैम्पलिंग करने के लिए एक मेथड होता है स्ट्रैटिफिकेशन. आपके पास कैटेगरीज में डिवाइडेड है द होल पॉपुलेशन सपोज, ठीक है. जैसे कि हम नॉर्मली अपने सैम्पलिंग में बात करें तो टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, राइट, और बहुत सारे प्रोफेशन के लोग हैं और आपकी पॉपुलेशन में सब हैं. तो आप इनको अलग अलग स्ट्रैटाज या ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं एंड देन यू ट्राई टू कलेक्ट अ सैम्पल फ्रॉम ईच ऑफ दीज स्ट्रैटा depending upon their proportion in the total population, right? So अगर यंग या स्टूडेंट्स की पूरे पॉपुलेशन के अंदर ज़्यादा प्रपोर्शन है तो आप अपने सैम्पल में भी उनका प्रपोर्शन उसी अकॉर्डिंग रखते हैं. दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन. अब इसी तरह से सपोज एक एग्जाम्पल है कि एक पर्टिकुलर बिजनेस की ये सब ऑर्डर आईडीज हैं, 50 आपको एंट्रीज दे रखी हैं इसकी, ठीक है. ट्रांजैक्शंस हैं, ऑर्डर आईडीज हैं, उसमें क्या क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं वो, डे, कौन सा प्रोडक्ट, कैटेगरी क्या थी उस प्रोडक्ट की, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर द 2 कैटेगरीज, राइट. उसमें कौन सा प्रोडक्ट था, कौन सी कंट्री में ये से ऑर्डर आया ये और कितने अमाउंट का था. कंट्रीज भी डिफरेंट बहुत सारी कंट्रीज के साथ ये 7-8 कंट्रीज के साथ डील कर रही है पर्टिकुलर कंपनी, ठीक है. सो ये एक्सपोर्ट, सपोज एक बिजनेस हाउस है तो यहाँ से कनाडा से आया इतना अमाउंट का ऑर्डर और कौन सी डेट पे आया, दिस कुड ऑल्सो बी देयर. सो ये सारा डेटा, इतनी सारी ट्रांजैक्शंस हैं, एक ऑडिटर को एनालाइज करना है तो वो 50 ट्रांजैक्शंस को एक साथ नहीं कर सकता. ही माइट चूज अ सैंपल आउट ऑफ इट. इफ ही वांट्स टू चूज अ सैंपल ऑफ 20, यहाँ पे हम 50 ट्रांजैक्शन ले रहे हैं, इसके जगह पे 500 ट्रांजैक्शंस भी हो सकती थी. सो ही हैज टू चूज अ सैंपल, और वो सैंपल रैंडमली सिलेक्टेड होना चाहिए, तभी उस सैंपल की जो आपने ऑब्जर्वेशंस ली हैं दैट यू कैन जनरलाइज ऑन द होल ऑफ द पॉपुलेशन, राइट. सो इसमें से उसको सैंपल कलेक्ट करना है तो वो किस तरह से सैंपल ले, क्या स्टार्टिंग की 10 एंट्रीज को ले ले, उसमें ऐसा हो सकता है कि कोई एक कंट्री की मिस ही हो जाए पूरी ट्रांजैक्शन, एक ही कंट्री से ज्यादातर आ जाए. सो उसको ऐसा सैंपल, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेना है जहाँ पे हर कंट्री की भी रिप्रेजेंट हो और उतने प्रपोर्शन में रिप्रेजेंट हो जितना वो एक्चुअली पॉपुलेशन में है. अगर कनाडा से ज्यादा डीलिंग होती है तो हमारे 20 के सैंपल में भी ज्यादा जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कनाडा की होनी चाहिए, अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेटली होना चाहिए. सो हाउ टू डू दैट, सपोज व्हाट ही डज इज, ये जो पूरा डेटा था 50 ट्रांजैक्शंस का, उसके लिए उसने जो सपोज 5 कंट्रीज का था ये डेटा, पूरा 5 कंट्रीज हैं कस्टमर्स. तो यहाँ पर अगर सपोज उसको ये भी निकालना है कि टोटल एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कनाडा से को कितने हुए, अलग अलग कंट्रीज वाइज टोटल एक्सपोर्ट्स निकालने हैं. सो व्हाट he'll do, he'll apply the formula of sum if. तो वो क्या लगाएगा, रेंज क्राइटेरिया एंड सम रेंज.
इस पूरी ई वाली कॉलम को देखो, ठीक है, ये पूरी रेंज सिलेक्ट कर लेगा वो 50 की। सम इफ दिस रेंज इज इक्वल टू कनाडा, सबसे पहले वो ये वाले सेल को सिलेक्ट करेगा, ठीक है। इस पूरी रेंज में क्या वो कनाडा के इक्वल है? अगर है, इसमें से पिक करो जो जो कनाडा के इक्वल है उनका सम इफ करो, और कौन सी रेंज को सम करो? अमाउंट वाली रेंज को सम करो, राइट। सो इस तरह से वो सम इफ का फॉर्मूला लगा के कनाडा की टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स निकाल लेगा। सिमिलरली सेकेंड टाइम वो इस पूरी रेंज में से इक्वल टू फ्रांस जो होगा, अगर फ्रांस है तो उसको मैच करके एंड उनके सामने वाले अमाउंट्स को सम कर देगा। इस तरह से वो टोटल सेल्स या टोटल एक्सपोर्ट्स निकाल सकता है। नाउ इन केस ही वांट्स टू कैलकुलेट द सैंपल साइज, उसने ये डिसाइड कर लिया कि 20 का सैंपल ही वांट्स। नाउ इस 20 के सैंपल में से कितनी ट्रांजैक्शंस कनाडा की होनी चाहिए, कितनी फ्रांस, कितनी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जर्मनी की। फॉर दैट ही नीड्स टू काउंट कि कनाडा की टोटल 50 में से टोटल कितनी ट्रांजैक्शंस हैं, फ्रांस की टोटल कितनी ट्रांजैक्शन है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। सो फॉर दैट ही कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ काउंट इफ, राइट। काउंट इफ में रेंज और क्राइटेरिया डिफाइन करना है। तो ये पूरी रेंज, वो कंट्री वाली जो है ये रेंज, इस रेंज को देगा और उसके अंदर कहेगा कि काउंट इफ इस रेंज, दिस रेंज इज इक्वल टू कनाडा। तो कनाडा में की जितनी एंट्रीज होंगी उसका नंबर आ जाएगा। सिमिलरली फ्रांस का, ऑस्ट्रेलिया का ड्रैग करके वो टोटल 50 ट्रांजैक्शन में से 7 जर्मनी की हैं, 3 न्यूजीलैंड की, 5 ऑस्ट्रेलिया की, इस तरह से वो निकाल लेगा, ठीक है। इनका प्रोपोर्शन फाइंड आउट कर लेगा कि कितनी परसेंटेज जो है 50 में से 40% कनाडा की है। सो 50 में से 20 जो है वो कनाडा की ही हैं। सो 40% इसकी है, 30% इसकी, 10, 6% एंड 14%, इस तरह से प्रोपोर्शनेट निकाल लिया। नाउ इफ ही वांट्स अ सैंपल ऑफ 20, 50 में से 20 अगर कनाडा की हैं तो 20 में से कितनी वो कनाडा की रखे प्रोपोर्शनेटली, 40%। सो 8 उसको कनाडा की चूज करनी चाहिए। सो वो सिंपल एक्सेल का यूज करते हुए फॉर्मूला लगा के K2 इंटू 20 करके, 0.4 इंटू 20 करके, 0.3 इंटू 20 लाइक दिस, वो ड्रैग करके नंबर निकाल सकता है कि उसके 20 के सैंपल में कितनी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो कौन कौन सी कंट्री से उसको पिक करनी चाहिए। एंड देन इनको पिक करने के लिए भी वो रैंडम नंबर्स, रैंड फंक्शन का यूज करके रैंडम नंबर्स जनरेट करके रैंडमली पिक कर सकता है। कनाडा की सारी ट्रांजैक्शन में से रैंडमली 8 पिक कर सकता है। लाइक दिस ही कैन get a random sample which will be representative and thereby we remove the sampling error, जो कि otherwise वैसे ही वो खुद से judgmental sampling करता तो शायद वो इतना representative sample नहीं होता। So with the help of computer techniques, basically Excel, what we are analyzing, he can also choose a random sample. Similarly, he can also